forgot to record. Okay. So do while loop is very much like the while loop, and even if the condition of the do while loop is false, the loop will run once. So you can take it as arriving at a restaurant. ठीक है, अब रेस्टोरेंट आए, अच्छा लग रहा है रेस्टोरेंट, आके बैठे, मेन्यू देखा, पसंद नहीं आया, सही है, लेकिन मेन्यू देखा एक बार, ऐसे हो यार चले यहाँ से, अजीब सा लगता है लेकिन चले जाते हैं लोग, तो वो वाला चक्कर है कि आगे आपने एक दफा मेन्यू जरूर देखा, सही है. So you did the task once, but you didn't like it, you left away, you left. Okay, so the same thing can happen in programming as well. You want some task to be done once. Okay, and for example, you were getting the coordinates. So whenever you open Google Maps, it will always give you your location. You don't ask it to give you your location, but it always gives you your location. So then I may choose to add another location or not. But if I don't, it will just keep on. It will give me one location at that point. So actually, Google Maps doesn't do it that way, but it's just like to show you like how where in what location it does it. It can be used. In my experience, people rarely use do while loops. They normally work with the while loops. Okay, but you may encounter them. Okay, and they are part of the Java language. So maybe in future you're sitting in some coding competition, do while loop comes in, and you get confused. I've never seen this do while loop. Okay, so that's why we are studying this. So do while loop statement looks something like this. So first of all, it says do. करो ये. Okay. लेकिन उसमें तो ये है, अरे छोड़ो ना, करो तो करते हैं ना हम, दूसरा कह रहा होता है ये नहीं, एक दफा करो तो ठीक है. तो वही वाला चक्कर होता है कि you are asking it to do something, and when that thing is done, then you are checking the while condition. Okay, and keep in mind that over here you can see like after the while condition there are semicolons. Don't forget that. If you forget that, you will get an error. But in while loop there is no semicolon. If you put the semicolon in while loop, it will run, but it will not going to. It's not going to. It's not going to run any of these statements. It will just get stuck in a limited loop. So either it will give you an error, or it will run and it will get stuck. Okay. So here's an example of a do while loop. So I declare a double. So first of all, I declare an x, which is a double. I give it the value 0. I declare y, which is also a double, and its value is 0. And then I print the value of x and y. It says the value of x is 0 and your value of y is 0. So that's what it does. And then you can see that it does x is equal to math.random. So now it's getting the value of x as a random value. Now math.random, what it does is, you have already studied it, but I'll repeat it. It gives you a decimal value between 0 and 1. It will not give you 1. It will give you from 0 to 0.999999999. So any random value between that, between this. Okay. Yes. No, because they are part of string. So the question was, within the quotation marks I have written x and y, will they be replaced by a value? No, they will not, because they are part of a string. Okay, anything which is part of a string, it's a string. Okay, so then I will get the yes question. So so the question is like the order of the values, does that matter? Okay, yes, it matters. So the question is, why am I writing the output in the beginning before taking the random value of x and y? Because I want to show that the current value is 0 and 0. I want to show that I'm starting from 0 and 0.
And after doing that, I'm getting the x and y, I'm getting new values for x and y, which are random values in this case. And then once I get those random values, I check if those random values are greater than 0.5, like sum of those random values. So suppose I get 0.1 and 0.2. So the sum is less than 0.5, and then this while condition becomes true. So if this while condition becomes true, it will go back. It's going to print the new value of x and y, which is 0.1 and 0.2. Come to the new lines. In the new line is going to get some new values of x and y. So suppose this time they are 0.1 and 0.9. We add them together, so the values become 1 completely. 1 is greater than 0.5. So this while loop will break at that point because the condition has become false. Okay. Now suppose you start this loop, and the first time you get the values, it's 0.5 and 0.6. That will become 1.1. And 1.1 is greater than 0.5. So that is where the loop will break. So it will show you that the initial value of x and y is 0 and 0. But afterwards, it's not going to do anything. Okay. Even though the condition was false. Okay. So this is where the do while loop can be used. Okay. It's used for repetition, but that's what I'm saying. It's used for repetition. The only difference is that even if the condition is false, it will run the code once. Okay. Yes, question? ठीक है, सही है। नहीं करेगा ना, आपने उसको नई वैल्यूज दे दी हैं, उसने नई वैल्यू का सम किया, तो वो कंडीशन जो है फॉल्स हो गई। जब फॉल्स हो जाती कंडीशन, लूप तो कभी नहीं चलता। डजंट मैटर कि उसके ऊपर वापस ऊपर जाएगा ही नहीं, यहाँ पे रुक जाए। आउटपुट हो जाएगा ना यार, आउटपुट कर दिया ना, ब्रैकेट्स के अंदर है। मैं कहा था एक दफा चलेगा तो एक दफा चलेगा 0 एंड 0 प्रिंट कर देगा। उसके बाद जो है एक्स और वाई को नई वैल्यू मिलेंगी, नई वैल्यूज प्रिंट नहीं होंगी क्योंकि लूप खत्म हो गया। ठीक है ना, 0 आएगा। यस, ठीक है ना। देखें क्वेश्चन है कि फर्स्ट आउटपुट 0 होगा, ठीक है ना। इसमें लॉजिकली इसमें क्वेश्चन की बात ही नहीं है, क्योंकि आप देखें वो लूप चल रहा है तो पहले कौन सी स्टेटमेंट आ रही है, फिर तो इसमें प्रिंट हो जाएगा। ठीक है ना। जो लैंग्वेज है वो चीज़ें बहुत सिंपल है, लॉजिकल है। ठीक है, आपने इसमें कंफ्यूजन नहीं है, ऐसे खुद से कंफ्यूजन क्रिएट ना करें। ठीक है, आप सिर्फ स्टेप बाय स्टेप देखें। ठीक है, जो चीज़ पहले आएगी पहले एग्जीक्यूट होगी। ठीक है, उसमें ये नहीं है कोई चीज़ जो आप बाद में देखें एग्जीक्यूट हो जाएगी, सिक्वेंशली चलेगी। ठीक है, अपने आप को इन सवालों से कंफ्यूज ना करें। कभी फ्यूचर में भी ऐसा होना कि भाई क्या होगा, तो आप देखें अच्छा हो क्या, गो स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, अगर उसमें कंफ्यूजन हो रही है तो हर स्टेप में जो हो रहा है साथ में लिख लें। ठीक है ना, कोड है ना, साथ में लिख लें कि इधर आया, अच्छा यहाँ पे मेरे एक्स और वाई की ये वैल्यू है। अगर आप मौका मिला तो आज मैं आपको दिखाऊंगा कैसे। ठीक है, लिख लें, उससे कोई कंफ्यूजन होगी ना। ठीक है, और ये बिल्कुल वैलिड सवाल है, ये सबको कंफ्यूजन होती है, हर एक कंफ्यूजन होता है, कंफ्यूज होता है, क्योंकि प्रोग्रामिंग जो है वो हम जिस दुनिया से हम आ रहे हैं उसमें चीज़ें बड़ी रैंडम है। और सबसे ज़्यादा रैंडम और ट्रैफिक है, कितने ही रूल्स हो उल्टा सीधा आ रहा होगा। ठीक है, एक कराची की खसूसियत है। Zinera, I'll get back to you soon. Okay? तो उसमें ये है कि रैंडम है, तो हम जो सोचते हैं ना हम उसी तरह सोचते हैं। ठीक है, लेकिन प्रोग्रामिंग में हर चीज़ बहुत सिक्वेंशियल है। ठीक है, वो लॉजिकल है, तो जो चीज़ पहले लिखी है हमेशा वो पहले एग्जीक्यूट होगी। सही है, तो इसलिए अपने आप को उससे कंफ्यूज ना करें। अच्छा जिनेरा, आप अपना सवाल पूछें। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि जब पहली बार प्रोग्राम मतलब लूप चलेगा तो जो system.out.println वाली है उसमें वैल्यू 0 और 0 आएंगी, सही है, प्रिंट होंगी। फिर दोबारा जब चलेगा तो वो रैंडम वैल्यूज प्रिंट होंगी जी। या डायरेक्ट? ठीक है, थैंक यू। ठीक है, दोबारा चला तो लूप दोबारा से चला तो स्टेटमेंट पहली कौन सी आ रही है, प्रिंट स्टेटमेंट।
अब एक्स और वाई की क्या वैल्यू है, जो कि हम नई वैल्यू असाइन कर दी है, ठीक है। तो एक्स और वाई की वैल्यू असाइन कर दी है, तो इस वजह से वो प्रिंट हो जाएंगी। इट्स वेरी लॉजिकल। आज समझ लें, ये 3 लाइंस है ना, ये लिखी हुई है, एक के पीछे एक के बाद दूसरी आप लिख दें, आप लूप ना बनाएं। मैंने को रिपीट करना चाहा तो मुझे ये स्टेटमेंट दोबारा से लिखनी पड़ेगी, यही होगा ना प्रोग्रामिंग में, ठीक है। तो मैं उनको उठाऊँ, वैल्यू नहीं असाइन करूँ, फिर से मैथ डॉट रैंडम कॉल कर लूँ और फिर दोबारा से तीनों लाइनें लिख दूँ, फिर मैथ डॉट रैंडम कॉल करके फिर से प्रिंट को फिर से तीनों लाइनें लिख दूँ। अगर मैं खुद से करूँ, लूप ना हो, तो मुझे यूं करना पड़ेगा। अगर लूप हो तो मुझे करना नहीं पड़ता, ठीक है ना। तो लूप का ये फायदा है कि अगर मैं लूप के बगैर भी काम कर सकता हूँ, ये नहीं है मैं नहीं कर सकता, मैं कर सकता हूँ, ठीक है। और पीछे कंप्यूटर कर ही ये रहा होता है, एक के बाद दूसरी तीनों लाइनें लिख रहा होता है, कर यही रहा होता है, ठीक है। लेकिन जो फर्क है वो ये है कि चलो मैं 10 लाइनें कॉपी पेस्ट कर लूंगा, अगर 1000 लाइनें तो मैं फंस गया ना, 1000 बार कॉपी पेस्ट का, कंट्रोल V दबाए रखूंगा कि पेस्ट होता रहे, और वो भी आप तब कर सकते हैं जब किसी ने पेस्ट बना लिया था, if somebody thought that okay हमें पेस्ट की फंक्शनलिटी बना लेनी चाहिए। अब सोचिए जैसे कॉपी और पेस्ट, जिससे कॉपी पे उसकी डेथ हुई है, द पर्सन हु एक्चुअली क्रिएटेड दैट कॉपी एंड पेस्ट, अगर उसने ये क्रिएट ना किया होता तो हमें हर चीज खुद से टाइप करना पड़ रही होती, सही है। तो ये आपकी प्रोग्रामिंग में ये आपको वो बनाई है, आसानियां पैदा की हैं ताकि आपका काम तेज हो, आप कम चीज लिखें, अच्छी लिखें और वो ज्यादा चले, ठीक है। जैसे जापानी चीज होती है, वगैरह अब तो कम बनती है, लेकिन जापानी चीज होती है कि अच्छी क्वालिटी की बनती, चलती बहुत है, ये एक दफा से वो अच्छा काम करते हैं, ठीक है। तो ये आपने वो चीज आपने अप्रोच करनी है, ठीक है, आपने उधर तक पहुंचना। अच्छा, नाउ वी कम टू द कंटिन्यू स्टेटमेंट, ठीक है, ये भी लूप्स का पार्ट है, ठीक। Sometimes what happens is that you are running a loop and there are a lot of lines of code, and you want to say like, okay, till this point uh, we are not going to execute anything which comes after, okay. अब पहले अब मैं नहीं पता आजकल क्रिकेट के क्या रूल्स हैं, लेकिन पहले रूल्स ये होते थे कि देयर वाज अ 15 ओवर लिमिट। अगर लोग क्रिकेट खेलते हैं कि नहीं खेलते, पता है रूल्स के नहीं पता, जिनको नहीं पता तो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक। अगर आपने कभी नोट किया हो क्रिकेट को, लोगों को खेलते हुए देखा ही होगा ना, इतने मैचेस चल रहे होते हैं हर वक्त, ठीक? तो उसमें आपने देखा होगा राउंड में एक ग्राउंड में एक सर्कल, व्हाइट सर्कल बना हुआ होता है, एक पिच के अक्रॉस एक व्हाइट सर्कल बना हुआ होता है। ये कि पहले 15 ओवर में आपके उस सर्कल से सिर्फ 2 प्लेयर्स बाहर हो सकते हैं, ठीक है। आप पावर प्ले कहना शुरू करें, पहले पुराने रूल्स ये थे, मैं तो देखता ही नहीं हूँ ना वो, 1999 की बात नहीं देखा, ठीक है। वर्ल्ड कप में वो वर्ल्ड कप का फाइनल इतना बुरा हारे थे कि उसके बाद लाना तो इन सब पे छोड़ ही दिया ना, उसके बाद देखा ही नहीं। एनीवे, तो अब मुझे अब नहीं पता क्या रूल्स हो गए, लेकिन उस वक्त के जो रूल्स थे उसमें ये होता है कि 15 ओवर तक आपके फर्स्ट 15 ओवर इन इन अ वनडे मैच, फर्स्ट 15 ओवर से आपके सर्कल के अंदर आपके सारे प्लेयर्स होते हैं, सिर्फ 2 प्लेयर आगे बाहर होते हैं, ठीक। तो ये एक रूल था। इसका मतलब ये है कि आपने गेम स्टार्ट की, अब आपका लूप चल रहा है गेम का, लेकिन कंडीशन ये है कि 15 ओवर तक आप ये नहीं कर सकते, बाहर नहीं निकाल सकते, ठीक है। तो लूप तो चल रहा है, गेम चल रही है आपकी, लेकिन ये लिमिट लगा दी, ठीक है। तो उसी तरह की लिमिट इधर कंटिन्यू कर रहा है, ठीक है। कंटिन्यू क्या करता है कि इस एग्जांपल में कंटिन्यू क्या कर रहा है कि मैंने आई को 0 किया, ठीक। इसका ये ऐसा एग्जांपल अच्छी है नहीं, मैं इसको सही करता हूँ एग्जांपल। आप बेहतर है, ओके। सो हमने वाइल लूप चलाया, ठीक है, आई की वैल्यू को 0 रखा, ठीक है, आई इज लेस देन 5, फाइन, एवरीबॉडी इज ओके विद दैट, द लूप विल रन, एग्री, ठीक है। आई इज लेस देन 5, कंडीशन इज ट्रू, देन वी हैव अ इफ ब्लॉक, ठीक है। सो इफ ब्लॉक विल चेक द कंडीशन, नाउ कंडीशन इज आई इज लेस देन 2,
वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम 0, सो आई इज अगेन लेस देन 2, तो कंडीशन आपकी ट्रू हो गई, ठीक है। तब आप इस ब्लॉक के अंदर आ जाएंगे। ये समझ में आया या कंफ्यूजन है इसमें? हाँ, आई की वैल्यू आपकी 0 है ना, तो पहले वाइल के अंदर जो कंडीशन है, इज इट ट्रू और फॉल्स, ठीक है, तो हम अंदर आ जाएंगे वाइल लूप के। अब जो इफ ब्लॉक के अंदर जो कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स है, ट्रू है, तो फिर हम इफ ब्लॉक के अंदर आ जाएंगे। तो ये मैं बस कह रहा था। अब आई की वैल्यू हमने इंक्रीमेंट कर दी, ठीक है, तो आई इज इक्वल टू i+1 या i++, हमने i++ का बताया था आप लोगों को, बताया था कि नहीं? मैं इसको फिर से रिपीट कर दूंगा, ठीक है। आई इज इक्वल टू i+1, आई इंक्रीमेंट, तो आई की वैल्यू क्या हो गई, क्या हो गई, 1 हो गई, ठीक है, 1 हो गई। उसके बाद कंटिन्यू लिखा हुआ, अब कंटिन्यू जब कंप्यूटर कंटिन्यू पे आएगा ना, तो इट विल जंप डायरेक्टली हियर फ्रॉम हियर टू द टॉप, ठीक है। होना क्या, वरना क्या होता है, वरना क्या होना था, फर्स्ट सेकंड कंटिन्यू होता, फिर क्या होता, प्रिंट होता ना, ठीक है, वो प्रिंट करता और आई की वैल्यू को फिर इंक्रीमेंट करता, ठीक। अभी हम उधर पहुंचते तो देना उधर तक, ठीक। तो कंटिन्यू क्या करेगा, कंटिन्यू जो है आगे की स्टेटमेंट प्रिंट ही नहीं करेगा, यहीं से छलांग मार के ना टॉप पे पहुंच जाएगा, ठीक है। अब आई की वैल्यू 1 हो चुकी है, तो पहली कंडीशन जो वाइल की है, इज इट ट्रू और फॉल्स, ट्रू है। इफ ब्लॉक की कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स है, ट्रू है। फिर से आई की वैल्यू इंक्रीमेंट की, आई की वैल्यू 2 हो गई, कंटिन्यू किया, कंटिन्यू करने के बाद फिर से छलांग मार के ऊपर चला गया, बिल्कुल टॉप, बिल्कुल टॉप पे ले जाएगा, नहीं नहीं, पूरा पूरा टॉप पे जाएगा। वाइल का, ये वाइल का पार्ट है, इफ का पार्ट नहीं, ठीक है, ये पूरा ऊपर तक पहुंच, सुनिए, कंटिन्यू वाइल का पार्ट है जी। बढ़ेगी ना, क्यों नहीं बढ़ेगी, वाइल पे लेके जा रहा है ना, वो ऊपर थोड़ी। मैं कह रहा हूँ वाइल जो है वो, ये वाइल का पार्ट है, वाइल का पार्ट है, तो उससे ऊपर क्यों लेके जाएगा, ठीक। ओके, तो अब आई की वैल्यू 2 हो गई, इधर तक सही है, कंटिन्यू हुआ, कंटिन्यू की वजह से फिर से छलांग मार के ऊपर चला गया। तो इज 2 लेस देन 5, इज दिस कंडीशन ट्रू, इज 2 लेस देन 2, नो, तो इफ कंडीशन फेल हो गई, ठीक है। जब इफ कंडीशन जो है फॉल्स हो जाती है, यू डोंट गो इनसाइड द इफ ब्लॉक। अब आगे चलेंगे, अब क्या करेगा, आई की वैल्यू प्रिंट करेगा, इन दिस केस विल प्रिंट 2। अब आई की वैल्यू इंक्रीमेंट कर दी फिर से, अब आई की वैल्यू 3 हो गई, इट विल गो अप, एल्स स्टेटमेंट तभी तो निकाली है मैंने, हैं? वो कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा था, ठीक है, तो उससे चलेगा अभी, लेकिन वो उससे चलेगा यार, मैं अभी समझा रहा हूँ, वो अभी अभी मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि चीज़ कैसे करेगी, वो हम कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर रहे। हम जब प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो फिर हम देखेंगे कि व्हाट इज द बेस्ट, क्योंकि अगर देखा जाए तो मैं कर क्या रहा हूँ, मैं इसमें 2 3 4 प्रिंट कर रहा हूँ ना, वो तो इसके बगैर ही प्रिंट हो सकता है, ये सब कुछ करने नहीं होता है, मुझे जरूरत क्या है सब कुछ करने की, आई एम जस्ट गेटिंग यू, टेकिंग यू थ्रू द स्टेप्स सो दैट यू अंडरस्टैंड हाउ द एग्जीक्यूशन इज गोइंग, ठीक है, बाकी चीजें हम बाद में देखेंगे। तो अब आई की वैल्यू 2 थी, 2 प्रिंट हो जाएगी, आई की वैल्यू 3 ऊपर गई, फर्स्ट कंडीशन इज ट्रू, second condition is false, it will print 3, go up, third condition is true, second condition is false, it will print 4, go up, now it's 5, 5 is less than 5, 5 is not less than 5, so the first condition is false, so the loop will break and the program will end over there, ठीक है। तो ये कंटिन्यूस स्टेटमेंट थी, ये कंटिन्यूस स्टेटमेंट ये काम करती है, इज दैट अंडरस्टैंडेबल, ठीक है। किसी को किसी किस्म का कंफ्यूजन, ऑनलाइन सबको अगर समझ में आ रहा है सबको, आपको कोई चीज आपने पूछनी हो तो आई एम नॉट ऑलवेज लुकिंग एट द स्क्रीन, यू कैन जस्ट स्पीक ऑनलाइन, जस्ट अनम्यूट योरसेल्फ, स्पीक देन म्यूट योरसेल्फ, ओके। सो नाउ वी मूव ऑन टू द ब्रेक स्टेटमेंट, ठीक है। Break statement is normally how the loop breaks, or the loop terminates is when the condition becomes false, ठीक है। लेकिन आप उस वक्त नहीं ब्रेक करना चाहते, आप चाहते हैं कि उससे पहले ही ब्रेक हो जाए, ठीक है। तो एट सम पॉइंट
some special condition arises and you say, okay, I should break the loop over there. ठीक है, फर्स्ट करें आप काम कर रहे थे, लूप है कि आप पढ़ रहे थे घर में, तो पहले आवाज आई है, बेटा दही ले आना, अब मैं पढ़ लूँ फिर लाऊंगा, ठीक है ना। तो वो एक कंडीशन है, आपने उसको कर दिया कि मैं जो लूप चल रहा है उसको नहीं रोकना चाहता। इतने में फिर कंडीशन है कि बेटा जाओ वहां पे भाई का अल्लाह ना करे भाई का एक्सीडेंट हो गया, हाँ लूप तोड़ेंगे अपना भागेंगे, प्रायोरिटी की बात है ना। उसमें देखिए ना, अभी बात नहीं जाऊंगा पढ़ा, ठीक है। तो प्रायोरिटी की बात हो रही है फिर, तो ऐसे में इफ यू हैव रनिंग अ लूप एंड दिस स्पेशल कंडीशन व्हिच अराइजेस एंड यू डू नॉट वांट टू कंप्लीट द लूप, यू वांट टू ब्रेक द लूप एंड रन, ठीक है। तो ऐसे में आप ब्रेक स्टेटमेंट इस्तेमाल करें। अब इसको हम देख लें कोड को, ये I start with 0, I is less than 5, which condition is true. If I is equal to 3, I अभी 0 है, तो ये condition false हो जाएगी, तो इसलिए break execute नहीं होगा। It's going to print the value of I, which is 3, sorry, which is 0, and then it is going to increment. अब I plus plus जो होता है, इसका मतलब I is equal to I plus 1, हम पीछे करें ना I is equal to I plus 1, उसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, I plus plus, इसको increment क्या I is equal to I plus 1, उसका अलग मैं बताऊंगा आपको, वो क्या है, डोंट जंप अहेड, आएगा सब आएगा, डोंट वरी, ठीक है। आप ऐसा मैं इसलिए आपको रोकता हूँ क्योंकि आप ये बात करते हैं ना, तो बाकी जो नहीं पढ़ा वो ज्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे, यार ये क्या है, आई प्लस प्लस क्या है, दिखा देता हूँ आपको, ये देख रहे हैं आप, आई इज आई प्लस 1, यही आई प्लस प्लस है, ठीक है। एक ही चीज को देखेंगे दूसरा तरीका, जी आई क्या, आई प्लस इक्वल टू 1, फाटा का नाम से, फाटा नाम सुना है, बनता क्या फाटा से, ये ना हिस्ट्री का पार्ट है यार, ये तो पता होना चाहिए, इतनी पूरी जंग फाटा में चलती रही, इतने साल आप, इतनी लंबी जंग चली है वहां पे कि आप लोग बच्चे से जवान हो गए, ठीक है, और आपको पता ही नहीं फाटा से बनता ही है। फेडरली एडमिनिस्ट्रेटेड ट्राइबल एरियाज, ये ऐसा F.A.T.A है, इसको वही ना कि उसको उसमें ना कामचोरी में इसको फाटा बना दिया एफ, उसे अब हर एक फाटा ही कहता है, फाटा 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 फाटा, पता ही नहीं F.A.T.A है, वो समझते उसका नाम ही फाटा है, उसका नाम फाटा नहीं है ना। वो ये ट्राइबल एरियाज हैं, जब पाकिस्तान का हुआ था, ये पता होना चाहिए आपको, हिस्ट्री का पार्ट है, पाकिस्तान के हिस्से हुए थे, इंडिया के हिस्से हुए थे, पाकिस्तान बन रहा था, तो ट्राइबल एरिया से पूछा था कि आप किसके साथ जाएंगे, इंडिया के साथ कि पाकिस्तान के साथ, क्योंकि ट्राइबल एरियाज में कोई ऐसा कोई रूल था नहीं, तो उन्होंने कहा कि भाई हम पाकिस्तान के साथ जाएंगे, तो जब पाकिस्तान का हिस्सा तो बन गए, लेकिन उन्होंने कहा कि हम जो फेडरल गवर्नमेंट उसके अंडर नहीं आएंगे, तो इसलिए फेडरली एडमिनिस्ट्रेटेड हो गया, ठीक। तो इसलिए वहाँ पे जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन थी ना, वो वाली नहीं थी जो बाकी जगहों पे थी, और जो वहाँ पे जो आपके रूलिंग्स होती थी, वही जिरगा बैठता था, रूलिंग्स करता था आपका, ये जो आपकी सुप्रीम कोर्ट है उसका वहाँ पे नहीं माना जाता था, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, पता होना चाहिए। तो अब जब आपकी फौज उधर आई है, सब कुछ हुआ है, तो अब आहिस्ता आहिस्ता वो इस अंडर फेडरल गवर्नमेंट के अंडर आना शुरू हो गए, उनके जो लॉज हमारे ऊपर है उनके, उसके फायदा भी नुकसान भी है। फायदा ये है कि फेडरल गवर्नमेंट के अंदर नहीं है, तो जो हमारे राइट्स उनके पास नहीं थे, ये अलग बात है कि हमारे राइट्स को पूरे नहीं करता, लेकिन जो हमारे राइट्स है वो भी उनके पास नहीं थे, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, नहीं ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि मैं ये नहीं कह रहा उसके बाद किताबें पढ़ लें, लेकिन ये कुछ चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि कहीं पे बैठे कोई बात हो रही है तो पता हो कि बात क्या हो रही है, ठीक है। एनीवे, तो क्या बात थी, हाँ बात जो शुरू हुई थी वही थी आई प्लस प्लस से, ठीक है। तो आई प्लस प्लस जो है ना फाटा है, कि असल में आई प्लस प्लस है आई इज इक्वल टू आई प्लस 1, लेकिन उसको छोटा करके लिखना तो आप ये लिखना, तो बात ये हो रही है, अब फाटा पहुंच गए।
तो these are the same things, ठीक है. Okay, so when we do I plus plus, it becomes I, the value of I becomes 1. It goes up. 1 is less than 5. 1 is not equal to 3, it will not break, it will move forward. फिर 2 हो जाएगी. It's not equal to 3, move forward. 3 हो गई. Now I is equal to 3. If block, if condition जो है वो true हो गई. If condition में आके क्या कर रहा है, break. तो ये लूप जो है 3 से आगे चलेगा ही, क्योंकि यहाँ पे लूप आपका ब्रेक हो गया. यहाँ पे लूप खत्म हो जाएगा, ब्रेक ये वाई लूप. और कौन सा लूप है? इफ क्या है, ठीक है ना. ये इसका ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखें. ठीक है, इफ इज अ कंडीशन, इट्स नॉट अ लूप. इफ कभी रिपीट करता है? नहीं करता ना, तो इसलिए उससे कंफ्यूज ना करें. ठीक है. और ये भी एक कॉमन एरर है, लोग करते हैं काफी ज्यादा. जहाँ पे इफ यूज करना चाहिए वहां पे वाइल लूप लगा देते हैं. जहाँ पे क्या, वो तो उसकी डायरेक्शन बताएगा ना, किस डायरेक्शन में रिपीट क्यों होगा. ठीक है ना जी. क्या ऐसे लिखना जरूरी नहीं था. जब पहली पहली 3 वैल्यूज है उसके लिए तो जाएगा ना. ठीक है ना. पिछली असल में पिछली ही एग्जांपल थी, उसमें से मैंने एल्स हटा दिया था. ठीक है ना. तो वही एग्जांपल है. तो उस वक्त भी उसमें हटाने का फायदा था. इधर कोई फर्क नहीं पड़ता इतना, इसलिए मैं इसको इधर से नहीं. ठीक है. आपने खुद ही अपना जवाब दे दिया. आप पूछ रहे प्रिंट होगा कि नहीं होगा, खुद ही बता दिया कि ये होगा तो ये होगा. कहना अभी अभी तक आप कंफ्यूज रख रहे हैं. कंफ्यूज होने की बात नहीं है, कि लॉजिकल है. अगर इफ फॉल्स है तो एल्स में जाएगा. ठीक है. तो इसमें कुछ कंफ्यूज होने की बात नहीं है, अपने को बिलाओ या कंफ्यूज ना करें. तो ये है, आपने बस आप देखें लाइन बाय लाइन क्या हो रहा है. ठीक है. तो खुद ब खुद आपको समझ में आ जाएगा हो क्या रहा है. ठीक है. नहीं, सवाल पूछे, सवाल पूछने से नहीं मना कर रहा. मैं कह रहा हूँ कि अभी जो मुझे लग रहा है वो ये लग रहा है कि आप इसको देख देखे ना अपने आप खुद ही कंफ्यूज किए जा रहे हैं. ठीक है ना. कंफ्यूज ना हो, सीक्वेंशियली चले. हर लाइन पे देखें, इस लाइन पे क्या हो रहा है, इस लाइन पे क्या हो रहा है, इस लाइन पे क्या हो रहा है, इस लाइन पे क्या हो रहा है. ये आगे सबसे इंपॉर्टेंट स्किल है. सबसे पहले आप इस तरह करेंगे, डीबग करेंगे. इसको डीबगिंग कहते हैं, अगर आपने अभी तक नाम नहीं सुना उसका. कहते हैं प्रोग्राम में बग, ऐसा क्या मतलब होता है? एक ही चीज है. बग क्या होता है प्रोग्राम में? एरर अलग है, बग अलग है. ठीक है. एरर होता है अगर प्रोग्राम में एरर हो, प्रोग्राम चलता ही नहीं है. ठीक है. बग का मतलब ये है कि प्रोग्राम चल रहा है लेकिन आपको सही आंसर नहीं दे रहा. कोई भी एरर हो सकता है. ठीक. हाँ, तो वो जो उसकी हिस्ट्री ये है कि एक दफ़ा वाकई में पुराने जो बड़े कंप्यूटर होते थे तो उसमें वाकई में ये था कि प्रोग्राम सही जवाब नहीं दे रहा था, तो पता चला कि तारों में कीड़ा फंसा हुआ था. तो उन्होंने कहा था कि देयर इज अ बग इन द सिस्टम. तो जब उन्होंने कीड़ा निकाला, कॉकरोच वगैरह जो भी निकाला, तो चलना सही शुरू हो गया. तो वहां से बग का नाम आया. तो वहां से फिर जब आप बग ढूंढ रहे होते हैं प्रोग्राम में, उसको डीबगिंग कहते हैं. तो वहां से ही आया था. ठीक है. तो जो डीबगिंग है, सबसे पहले आप उसको विजुअली करते हैं. फिर जब समझ में नहीं आ रहा होगा फिर इसका डीबगर चलाते हैं. डीबगर बनाया, और डीबगर भी ये करता है लाइन बाय लाइन आपको लेके चलता है. ठीक. अब चूंकि वो कंप्यूटर चल रहा होता है, गलती नहीं करता, तो इसलिए आपकी गलती पकड़ी जाती है. लेकिन पहले सबसे पहले आप यूं देखते हैं. एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है आप लोगों के लिए कि आप अब आगे चल के IDEs इस्तेमाल करेंगे, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट. ठीक है. तो उसमें IntelliJ होता है, Eclipse होता है, नाम सुने हुए होंगे. हम विजुअल स्टूडियो कोड यूज़ करते हैं. विजुअल स्टूडियो कोड जो है स्पेसिफिकली IDE नहीं है, हम उसका एज एन IDE यूज़ कर रहे हैं. लेकिन सब में ना ये डीबगर दिया हुआ होता है. तो आपने इसकी आदत बनानी है डीबगर को इस्तेमाल करने की. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट स्किल, कि आपको डीबगर चलाना आना चाहिए. ठीक है. अक्सर स्टूडेंट्स पे नहीं मारता. सिर्फ 5 या 10 मिनट लगते हैं डीबगर समझने के लिए. अब वो वही नहीं करते. वही लगा लो 5-10 मिनट, सीख लो. नहीं, हम बहुत तेज हैं, आंखों से सब कुछ करेंगे.
ठीक है, नहीं वो उसी पे लगे रहते हैं। ठीक है, वो जो काम जो 5 मिनट में हो सकता है वो उसमें आधा घंटा लगा रहता है, तो उसकी आप आदत बनाए। ओके, सो we come to the code review. Uh, so let's jump to Visual Studio Code. If it opens. Okay, so let's close this. Or in Java. Oh, there's a test class. So let's. Okay, so we leave the main over here. We remove the rest. Okay, so let's work with a few values. Okay. So first of all, let's say like I want to print the numbers from 0 to 4. Okay. So I just write integer I is equal to 0, and I write while I is less than anything less 5. System the out dot print I. अच्छा, नजर नहीं आ रहा कंट्रोल? ठीक है, नजर आ रहे हैं? ओके, अच्छा, अब इसमें क्या होगा इस लूप में जी? उसके बाद लाइन से 0 आ जाएंगे। ये आप टाइप कर दे, बहुत यहाँ पे हमें खराब आवाज आई आपकी। 0 प्रिंट कर देंगे बिकॉज यू फॉरगॉट इंक्रीमेंट। ठीक है, तो ऑब्वियसली मैं जानबूझ कर छोड़ दिया था जी। सो आई डू I++, ये बग था, प्रोग्राम को नहीं पता चलेगा, ये हमें पता चलेगा है, क्योंकि हम जब इसको चलाएंगे ना प्रोग्राम हैंग कर जाएगा और हमें समझ नहीं आएगा हैंग क्यों कर रहा है। तो आपके पास आंसर गलत आना शुरू हो जाएगा, बग हुआ। तो आपको पता है ना यार, प्रोग्राम को थोड़ी पता है, प्रोग्राम से जो कह रहे हैं वो कर रहा है। और डीबगर अपने लिए होता है, डीबगर लाइन बाय लाइन चलता है, वो हर चीज की वैल्यू आपको दिखाता रहता है। ठीक है, डीबगर सिंटैक्स एरर नहीं बताएगा, डीबगर जो है वो आपको हर पॉइंट पे हर वेरिएबल की क्या वैल्यू वो बताता रहेगा। ठीक है ना, तो उसमें जब आपने कहीं पर आई इक्वल I+2 किया गया है तो वो आप देखेंगे कि आई जो आपको 1 होना था वो एकदम से 2 हो गया। ठीक है ना, तो डीबगर ये बताता है आपको, तभी तो डीबगर कहते हैं। ठीक है, तो आपको हर वक्त सारे जो वेरिएबल्स और सबकी बताता है। ठीक है, वैसे बताता है। ठीक है, वो ये नहीं है कि वो एक अंदर एक छोटा सा आदमी बैठा हुआ है, वो आप उसे कहेंगे भाई मैं प्रोग्राम दिया तुम सही करो, वो कहेगा अच्छा मैं बस हाथ मसलेगा वहाँ पे आ जाएगा, चलो मैं सही करता है। तो वो ऐसे नहीं होता, वो आपको सिर्फ दिखाता है कि आपने क्या किया है। ठीक है ना, तो अगर आपने गड़बड़ की हुई है तो आपको पता चल जाता है कि आपको सारी वेरिएबल्स आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, सारी वैल्यूज दिखा रहा हूँ। सात ने सही जवाब दिया, 0 1 2 3 0 1 2 3 4। ओके, तो दो साफ वैल्यूज दिखा रहा होगा। ठीक है, अब हम इसको रन करेंगे तो we should get 0 1 2 3 4। ठीक है, आ गया 0 1 2 3 4 सही। अगर हम कहते हैं कि यार मज़ा नहीं आ रहा, सब जोड़ जोड़ के आ गया है, ठीक है, तो फिर आप उसका सिंपल है कि आप प्लस डाल के इसमें आप स्पेस दे दो, स्ट्रिंग लगा दें। ठीक है, जब भी ये प्रिंट करेगा इट विल प्रिंट इट एज अ स्ट्रिंग, इवन दो इट्स अ न्यूमेरिकल वैल्यू इट विल प्रिंट इट एज अ स्ट्रिंग। तो आप उसमें स्ट्रिंग को ऐड कर देते। ठीक, तो इसको अब मैं रन करूंगा। ठीक है, आप कर दें, लेकिन फिर उसमें मसला है, उसमें एक छोटा सा मसला है।
मुझे याद नहीं है इस पे काम करता है, मैं हाँ काम करता है, लेकिन मैं नहीं शायद नहीं काम कर रहा, नहीं कर रहा, एरर दे दिया, अब प्लस ही करना पड़ेगा। आप ये सी प्लस प्लस से कंफ्यूज कर रहे हैं, तो उसमें कॉमा लगता है, सी प्लस प्लस में, सी में बल्कि। जी जी, क्या चीज? इंटीजर चाहिए बीच में स्पेस हो, आप कोई नंबर लिखते हो स्पेस होता है? आप कभी लिखते हैं नंबर टाइप करते हुए फोन पे 00307 स्पेस? नहीं करते ना, स्पेस इज नॉट अ नंबर, इसलिए अगर आपको नंबर चाहिए यू विल हैव टू कन्वर्ट इनटू अ स्ट्रिंग। ठीक है, ये ख्याल रखिएगा इन चीजों का। जी, तो आप बताएं, प्रिंटर लाइन किया हुआ है हमने, क्यों नहीं आएगा? क्यों नहीं आएगा? प्रिंट एलन का मकसद ही ये है, प्रिंट लाइन, और उसमें बताया था कि नेक्स्ट लाइन में आएगा, तो आ गया नेक्स्ट लाइन। ठीक है, अगर आप कहते हैं कि मैं नहीं मानता, तो ऐसे में आप ये कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं प्रिंट कर दिया, मैं स्लैश एन डाल दिया, कोटेशन के अंदर करेंगे, स्लैश एन जो स्ट्रिंग का हिस्सा होता है, स्लैश एन इज अ स्पेशल कैरेक्टर। ठीक है, तो आपकी भी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। ठीक है, और ये बाज़ात ये लोग आप लोग करेंगे, ठीक है ना, यू कैनॉट ऑलवेज डू प्रिंट एलन ऑल द टाइम। ठीक है, बाज़ात प्रिंट को आपको फॉर्मेट करना होता है, उसमें आपको करना पड़ता है। ठीक है, तो फिर इट्स गुड टू नो दीज थिंग्स। तो अच्छा सवाल तुमका। तो इससे हमारा वाइल लूप जो है वो प्रिंट हो गया। ठीक है, अ, सब कुछ है इस चीज़ से। ठीक, अब फर्ज करें कि मैं आई की वैल्यू यहाँ पे 6 देता हूँ, अब क्या होगा? क्या प्रिंट करेगा? कुछ प्रिंट नहीं करेगा। ठीक है, चले वी वेरीफाई, हमें पता है कि नहीं करेगा, लेकिन हम वी वेरीफाई, अगर मैंने आप लोगों को गलत पढ़ा दिया तो वो अलग बात है, लेकिन अभी तक शुक्र है सही पढ़ा जाए। ठीक है, तो कुछ नहीं प्रिंट किया उसने, क्योंकि कंडीशन फॉल्स थी, वाइल लूप में गया ही नहीं। ठीक है, लेकिन अब क्या करेगा? आप प्रिंट करेगा, कंडीशन फॉल्स है ना, मैं कंडीशन बिल्कुल चेंज नहीं की, वही रखा है। अब मैं इसको रन करूं, ठीक है, तो आपने देखा कि दोनों वही लूप था, मैं चेंज कर दिया, उसको वाइल से डू वाइल में कन्वर्ट किया, तो पहले वैल्यू प्रिंट नहीं हो रही थी, प्रिंट हो रही, इवन दो कंडीशन फॉल्स। ठीक है ना, तो इससे पता चलता है कि डू वाइल लूप कैसे काम करता है, वाइल लूप कैसे काम करता है। ठीक है, अब आप वही सवाल कर रहे हैं जो कि वेरी लॉजिकल है। ठीक है, लेकिन मैं आप ही पे छोड़ूंगा। ठीक है, सवाल ये है कि अगर मैं आई की वैल्यू को 10 कर दूं, तो ये क्या लूप चलेगा कि नहीं चलेगा? ठीक है, यहाँ पे 10 कर दिया मैंने, आई इज लेस देन 10। अब आप बताएं, जिन्हें सवाल किया, अब आप मुझे जवाब दें, यहाँ पे आई क्या वैल्यू है? 6। यहाँ पे क्या प्रिंट होगा? 6। यहाँ पे क्या हो गया? 7 हो गया है, और इज 7 लेस देन 10, तो लूप चलेगा। बस, ये लॉजिकल। यस, डू वाइल इफ एल्स वाली कंडीशन कैसे डालेंगे? ऐसे, okay, somebody was asking that I should run this, so we run this. ठीक है, 6 7 8 9। ठीक है, तो डू वाइल आपका चल गया, इसमें कोई कंफ्यूजन?
अब हम एक और चीज कर सकते हैं, लेट्स undo this while I is less than 0.1. So let's make this double. Let's make this 0. And ये मेरे ख्याल में ठीक है, और इधर हम कर देते हैं I is equal to math dot, तो ये कितनी बार चलेगा? हाँ डिपेंड करें, तो मैथ डॉट रैंडम की वजह है कि 0.0 करके कोई वैल्यू होगी तो फिर ये उस पर रुकेगा, अदरवाइज ये चलता रहेगा। ठीक है, तो हम ये कर देते हैं, इसको रन करते हैं। हाँ क्या गड़बड़ की है मैंने, मैथ डॉट रैंडम वैसे एक दफा क्यों चला, एक दफा ही 0 आ गया, फिर मुझे लगे दोबारा 0 देगा। लेट्स ट्राई। हाँ कोई गड़बड़ हो रही है, कहाँ पे गड़बड़ हो रही है? मैथ लाइब्रेरी इंपोर्ट नहीं करनी पड़ती, हर बार नहीं करनी पड़ती। ठीक है, अगर वो आपको स्पेसिफिकली इसको आइडेंटिफाई ना करे, मैथ की लाइब्रेरी कहे नहीं, वरना आपको एरर दे देगा। अगर मैथ की लाइब्रेरी गड़बड़ है ना, तो ये आपको एरर दे देगा। मैंने क्या गड़बड़ कर दिया था, समझ में नहीं आ रहा। नहीं फिर तो इन्फिनिट चल जाएगा, लेकिन यहाँ से बाबा 0.0 ही दे यार। रिपीट नहीं हो रहा लो। हाँ वो आई की वैल्यू सेकंड लूप में बढ़ी थी 0.1 से, तो रिपीट नहीं हो रहा वो। जब शुरू में जब स्टार्ट किया था उस टाइम उसकी वैल्यू 0 ही थी आई की, तो पहली दफ़ा लूप स्टार्ट हो गया था तो उसने प्रिंट कर लिया था। उसके बाद रैंडम अप्लाई करने के बाद उसकी वैल्यू ज़्यादा हो गई थी 0.1 से, इसलिए रिपीट नहीं हो रहा। हाँ सही है, सही है। बस 0.9 की 0.5 कर देते हैं। ठीक है, सो लेट्स रन दिस। तभी यार अब क्या गलती है? हाँ से नहीं क्या, सिर्फ 0.99 करके देखेंगे, 0.1 कर दें, सॉरी 1.0। हाँ 2-3 दफा चला के देखना चाहिए था। अब चल गया, ठीक है। इनफाइनाइट लूप देखने का बहुत शौक है। मैं बताता हूँ आपको। सर लेस देन 0.5 कर दें तो इंफिनिट नहीं चलेगा। मैं आपको बताता हूँ, मैं अभी आगे बताता हूँ। ठीक है, तो ये अब चलना शुरू हो गया, तो नॉर्मली ब्रेक से, ब्रेक कहाँ है, ब्रेक नहीं उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, उसके बाहर ही हो जाएगा। मैं अपने कीबोर्ड में ब्रेक ढूंढ रहा हूँ, ब्रेक किधर है, पॉज के साथ होता है वैसे नॉर्मली, मैं ब्रेक नजर नहीं आ रहा। तो इसमें टर्मिनल बंद करने की जरूरत नहीं पड़ती, उसके बगैर ही कहीं पे होता है। इसको ये बंद कर दो भाई, चल। फाइल बंद हो गई, हाँ गलती कर दी। अपन रिसेंट इसको दोबारा रन करके देखते हैं। हाँ ये आ गया, स्टॉप, ये स्टॉप स्टॉप स्टॉप। ओके, अब क्वेश्चन ये था कि पहले चल क्यों नहीं रहा था। पहले चल गया था कि मैं एक गलती कर रहा था कि मैं आई वाज गिविंग द कंप्यूटर टू मच क्रेडिट। मैं उसको जो वैल्यू दे रहा था वही बहुत छोटी दे रहा था, तो वो क्या करता था कि जैसे 0.5 दी थी, तो अब जो चांस है कि ये 0.5 से बड़ी वैल्यू देगा वो कम है। क्या ये प्रिंट हो रहा है ना यहाँ पे? तो मैं जो था मैं
रैंडम ही आ रहा था ना। मैं जो था मैं इसको बहुत, अच्छा आप इसकी बात कर रहे हैं। पहला प्रिंट 0 देगा, तो पहला प्रिंट 0 ही दे रहा था, 0.0 दे रहा था। तो उसके बाद आई की वैल्यू प्रिंट हो रही थी, आई की वैल्यू जनरेट होती थी, तो वो वैल्यू थी वो मैं 0.1 दी थी। वो वैल्यू इतनी छोटी थी कि वो उससे छोटी वैल्यू दे ही नहीं रहा था, इसलिए एक बात चल रहा था। 0.5 दी, तो तब भी उसने पहली दफ़ा मैं चलाया, तब भी उसने वैल्यू जो उससे प्रिंट जो की, तो वो 0.5 से छोटी थी नहीं, तो इस वजह से उससे फिर से 0 दे दिया था। ठीक, इस वजह से प्रॉब्लम हो रही थी। तो मैंने कोड सही लिखा हुआ था, मैं उसको समझा गलत। ठीक है, तो अब इसमें यह है कि आपके पास ये दो वैल्यूज इसलिए प्रिंट हो रही है क्योंकि हमने यहाँ पे प्रिंट किया हुआ। ठीक है, तो इसलिए ये 0.04 आई, तो उसने प्रिंट करी। जैसे 0.51 आई, इट स्टॉप बिकॉज इट्स नॉट लेस देन 0. फिर रिपीट नहीं किया ना, क्योंकि आपका जो है वो यहाँ पे आने के बाद वो लूप आपका ब्रेक हो गया, इसलिए आगे नहीं चला। तो ये इसमें प्रॉब्लम आएगी। यस, मैंने आपको बताया था ना कि या तो आपको एरर देगा या फिर वो आपको किसी रैंडम वैल्यू से या आपको चलाना। अब देखना आई को एरर देना शुरू कर दिया उसने। लोकल वेरिएबल आई मे नॉट हैव बीन इनिशियलाइज्ड। क्या मैं रैंडम से ये इधर, हाँ फिर तो हो जाएगा। फिर तो हो जाएगा, फिर तो क्या होगा, चले आप बताइए क्या होगा इधर, क्या होगा इधर। इधर एक रैंडम वैल्यू आई के अंदर आ जाएगी। अब वो रैंडम वैल्यू अगर 0.5 से कम है तो लूप चलेगा, कम नहीं है तो नहीं चलेगा। कंट्रोल ब्रेक से करते हैं, या कमांड प्रॉम्प्ट को आप बंद कर दें, वैसे कंट्रोल ब्रेक से करते हैं। ओके, अब हम एक और करते हैं कि अब चूंकि हम क्रिकेट की बात कर दी थी, हम क्रिकेट ही बनाएंगे। ठीक है, हम क्रिकेट का एक ओवर बनाएंगे। ठीक है ना, क्रिकेट का एक ओवर हमने खेला है, इट हैज 6 बॉल्स। ठीक, इसका मतलब ये है कि आई जो है आपका, वी कैन मेक दिस इंटीजर, और हम कहते हैं कि सिंस देयर इज बॉल नंबर 1, इट्स गोइंग टू स्टार्ट विद 1। ठीक है, एंड व्हाइल आई इज लेस देन 7। ठीक है, 1 से चलेगा 1 2 3 4 5 6 7 पे 7 आएगी, 7 पे ये ब्लू ब्रेक कर जाएगा। ठीक, और हमें यहाँ पे आई प्लस प्लस किया, सॉरी आई प्लस प्लस जी, सब होगा। तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे रन्स इज इक्वल टू इंटीजर मैथ डॉट रैंडम मल्टीप्लाई बाय 7। एक मिनट, गलती कर दी मैंने, क्योंकि आपके पास वैल्यू जीरो से लेके 1 तक होती है, 1 नहीं 100 होता। तो आगे पास अगर 7 होगा, 7 को आप 0.9 से मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास नंबर आएगा 6 पॉइंट समथिंग आएगा, और 6 पॉइंट समथिंग को आप जब इंटीजर में कन्वर्ट करेंगे, इट विल मेक इट 6, उसको फ्लैटन कर देगा उसकी वैल्यू। ठीक है, तो 6.5 होगा, उसको 6 कर देगा, 6.3 होगा 6 कर देगा, 6.9 होगा तो 6 कर देगा। ठीक है, तो इस वजह से हमने 7 से मल्टीप्लाई किया। 0 की होती है, 1 की नहीं होती। अच्छा, ये मुख्तलिफ लैंग्वेज में ये रैंडम फंक्शन डिफरेंट है, तो उसका तरीका क्या है, कैसे मालूम करते हैं? पहले ये पाइथन तो नहीं है, कैसे मालूम करते हैं? डॉक्यूमेंटेशन पढ़ के भाई, डॉक्यूमेंटेशन पढ़ा ली, डॉक्यूमेंटेशन पढ़ ले, हर जो लैंग्वेज की डॉक्यूमेंटेशन है उसकी तो किताब खोले पढ़ ले भाई, किस तरह होता है। ठीक है, क्या हम पाइथन कर रहे हैं? हम नहीं कर रहे, तो उसका कोई फायदा नहीं है। ठीक है, आप कुछ भी बता दो, फायदा नहीं है। कर दे।
चाहिए, वो भी सही है, बिल्कुल सही है। आप उसको सील भी कर सकते थे, मैच डॉट सीलिंग उससे कर सकते थे, मैच डॉट फ्लोर से भी कर सकते थे। देयर मेनी वेज, ऑल वेज आर वैलिड। ठीक है, मैं इसमें टाइप कास्टिंग इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को जैसा अंदाजा हो जाए कि टाइप कास्टिंग कैसे होती है। ठीक है, जैसे हमारे पास रन आ जाएंगे। ठीक है, अब जो रन है कर दिया ना, हाँ रन से इनिशियलाइज नहीं किया, तो इसको अंदर ही इनिशियलाइज कर देना। ठीक है, अभी आउटपुट नहीं कर रहा। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम कर रहे हैं यहाँ पे स्विच लगाता हूँ, स्विच ठीक है। स्विच स्टेटमेंट हमने पिछली दफा की थी, स्विच स्टेटमेंट मैं उसको इस्तेमाल करूँ। मैं कहता हूँ केस 1 सिस्टम, नहीं ये तो हो जाएगा, केस 0 से करते हैं, केस 0 सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन he stopped here। ठीक है, और ब्रेक कर देना। तो ये हमारा केस 0 है। केस 0 अगर उसने किया तो हमेशा वो कहेगा ही स्टॉप द बॉल, सब होगा, सब होगा। 2 3 4 5 6। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 6, ये हो गया हमारा 5, ये हो गया हमारा 4, ये हो गया हमारा 3, हो गया हमारा 2, और ये हो गया हमारा 1। सिंगल 2 runs 3 runs good running, चौका। ठीक है, और हम जो एक ओवर बना रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, हम कहते हैं जब 5 आएगा ना हम उसको आउट कंसिडर कर लें। मतलब 5 एज सच नॉर्मली होता नहीं है, 5 रन आपके ओवर थ्रो से बनते हैं तो हम एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, अभी हम छोटा सा प्रोग्राम बना रहे हैं, हम 1 ओवर का बना रहे हैं जस्ट टू लर्न हाउ टू मेक इट। ठीक है, तो और 6 नहीं एक दफा चौका काफी था। ठीक है, सही है, इतना हमने कर लिया। अब हम क्या करें इस लूप में आई प्लस प्लस, इसका मतलब ये है कि ये लूप जो है ये 6 बार चलेगा और रन हमारे पास हमेशा एक रैंडम नंबर जनरेट होगा विच विल बी बिटवीन 0 and 6। बेस्ड ऑन दैट वो दिखाएगा कि हर बॉल पे क्या हुआ। ठीक है, इसको हम रन करते हैं यहाँ से। सही है, तो नहीं पहली बॉल नहीं है, फिनिकी है थोड़ा सा। पहली बॉल पे आउट, 3 रन गुड रनिंग, सिंगल, फिर दूसरा आउट हो गया, फिर 3 रन, फिर चौका। ठीक है, आई डोंट केयर दीज डेज कौन सी कोई भी टीम हो सकती है, मेरा दिल उठ गया चॉइस से। एनीवे तो ये हुआ। ठीक है, अब है ये, अब हमने क्या करना है कि वी वांट टू कैलकुलेट द टोटल स्कोर एज वेल। ठीक है, आज 6 बॉल्स की, 6 बॉल्स में रन किया। अच्छा स्कोर क्या, स्कोर क्या हुआ। ठीक, तो हम क्या करेंगे, हम एक इंटीजर स्कोर डिफाइन करेंगे, स्कोर इज इक्वल टू 0। ठीक है, और केस 0 पे स्कोर कुछ नहीं करेगा, केस 1 पे ये क्या करेगा, स्कोर +1। तो अच्छा हम कर सकते हैं स्कोर इज इक्वल टू स्कोर +1, हम ये कर सकते हैं। हम स्कोर
प्लस प्लस लिख सकते हैं, हम स्कोर प्लस इक्वल टू 1 लिख सकते हैं, हम ये भी लिख सकते हैं, दिस इज अनदर वे। ठीक है, स्कोर प्लस स्कोर प्लस प्लस भी लिख सकते हैं, स्कोर इज इक्वल टू स्कोर प्लस 1 भी लिख सकते हैं, स्कोर प्लस इक्वल टू 1 लिख सकते हैं। तीनों तरीके हैं, वो एक ही काम कर। ठीक है, ये तीनों तरीके हैं। अब इसी तरह हम अगले पे आते हैं, स्कोर प्लस इक्वल टू 2। ठीक है, ये स्कोर इज इक्वल टू स्कोर प्लस 2 को हम स्कोर प्लस इक्वल टू 2 भी लिख सकते हैं। इसमें हम करेंगे वैसे ही, स्कोर इज इक्वल टू स्कोर प्लस 3, मैं इस तरह लिख देता हूँ। ठीक है, एंड स्कोर प्लस इक्वल टू 4, फाइव पे कुछ नहीं करते, एंड स्कोर प्लस इक्वल टू 6। हम लिख देते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट टोटल तो अगर मैं कोई गलती नहीं की तो ये मुझे टोटल स्कोर बताएगा। सो लेट्स रन दिस। सिंगल 6-6, 3 आउट हो गए। ठीक है ना, बीच में शायद अफरीदी आया था मेरे का, तो भी आउट हो गया। नहीं, ये तो हमने ये रन किया, हमारे पास ये आया आंसर। ठीक है, अब इसको हम दोबारा रन करते हैं। लेट्स रन दिस अगेन। तो अगर आप टोटल करें तो सही आ रहा है। ठीक है, तो आप देखिए, हमने एक छोटा सा क्रिकेट का सिमुलेटर बना दिया। सही है, इट्स अ सिमुलेशन ऑफ क्रिकेट, क्योंकि जब क्रिकेट आप देख रहे होते हैं यही हो रहा होता है, कुछ नहीं पता क्या होगा अगली बॉल पे, उसी एक्साइटमेंट होती है। इसी में भी हमें कुछ नहीं पता हर बॉल पे क्या होगा, वही एक्साइटमेंट है। सही है, तो समझ में आएगा सब कुछ। ओके, तो फिर अब आपसे लैब में मिलेंगे 11:30 बजे। ये डोंट फॉरगेट जी।